केस में AVE is equal to 0.6 greater than 0.5. Third one is okay. What about the first one? What is alpha? Alpha is coefficient of reliability. कैसे निकालते हैं उसे? SPSS के अंदर analyze scale and the scale it is called reliability analysis. Analyze scale reliability analysis. Reliability में किसकी निकाल रहा हूँ यहाँ पे? 5, 6 new, 8, 9, 10 इनकी निकाल रहा हूँ ना? मेरे कंस्ट्रक्ट में कौन सी स्टेटमेंट आई है? आउटपुट में देखिए कौन कौन सी है? 8, 10, 6 new, 5, 9 5 है। 5, 6 new, 8, 9, 10 इनकी रिलायबिलिटी निकालते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एनालाइज स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस 5, 8, 9, 10 their order doesn't matter and 6 new. By default, the model is alpha. There are other methods, split half, Butman method, parallel, strict parallel. By default, it's alpha, which is called Cronbach alpha. Okay. इसकी जो reliability आई है 0.877. So the first condition is okay because in this case alpha is equal to 0.877. Reliability will always take Cronbach alpha. Always. There are various methods. When we work on the Likert scale, we work on the alpha. When we work on the various other scales, Osgood symmetric differential scale and others, cumulative Butman scale, then the other methods. Alpha is only about the reliability, nothing else. Validity में भी हम एक method reliability से ही है हमारा. Okay? So reliability is okay. First point is okay, then alpha is greater than AVE, this is okay, and AVE is greater than 0.5. So I will conclude my construct is valid. My construct is valid as far as convergent validity is concerned. As तीनों होना चाहिए, तीनों आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपकी नहीं हो रही है, ये दोनों ठीक है, तीसरा नहीं, वो भी नहीं, तीनों आपके ओके होने चाहिए. What do you exactly mean by convergent? Yes, what is meant by the convergent validity? The meaning of the convergent validity is all the statements converge together at one point. What is meant by converge? एक ही जगह आ रही हैं बस. बहुत हाई correlation है. That is the convergent validity. एक construct की, यानी सारी statement. The construct very well. They explain the construct very well. They all are very much together. That is the convergent. The other sort of validity. The second point, it's called discriminant validity. This is the opposite of. Not opposite, complement of. Discriminant validity. Discriminant से meaning क्या लगता है आपको, क्या होगा? Partiality करना, अलग करना. The validity talks about one construct is different from the other construct. In other terms, I am saying there is no cross loading between the constructs. The moment there is a cross loading, अगर एक बंदा ऐसा है इस ग्रुप में भी है उस ग्रुप में भी है, ये प्रॉब्लम करेगा. एक बंदा है ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, तीसरा अलग ग्रुप है, कुछ कॉमन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. गुड. इनफैक्ट ऐसा ही होना चाहिए. अगर एक ऐसा है एक इधर भी है, नारद टाइप इधर भी है, वो उधर भी बैठता है, उसके साथ भी, that is going to create a problem. That creates the problem of discriminant validity. Discriminant invalid हो जाएगा. So होना क्या चाहिए? बहुत सिंपल टर्म्स में हम पहचानेंगे कैसे? हम सिंपली ऐसे पहचानेंगे अगर आपका कोई स्टेटमेंट एक से ज़्यादा जगह पे अपनी प्रेजेंस शो करती है. अब मैंने ये जो यहाँ कर दिया, क्या यहाँ पे कुछ नहीं है? नहीं है, मैंने बस प्रेस कर दिया. मैंने आउटपुट को बोला कि इसको रिप्रेजेंट ना करे, दिखाए ना यहाँ पे 0.4 से नीचे दिखाए ना. इसका मतलब ये नहीं है वो है नहीं, लेकिन अगर 0.4 से ज़्यादा है तब तो दिखाएगा दो जगह. इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के दो फार्मूले हैं. ये एक्चुअली EFA में तो आप कन्वर्जेंट वैलिडिटी ही निकालते हैं, CFA के अंदर हम निकालते हैं. इसका फार्मूला है AVE should be greater than MSV, AVE should be greater than ASV. MSV stands for maximum shared variance. ये हम CFA में करेंगे, ये बेहतर CFA में निकलता है. MSV stands for maximum shared variance
ASV stands for average shared variance. I repeat, MSV stands for maximum shared variance. ASV stands for average shared variance. AVE is the same. Okay? The third sort of validity is called nomologically validity. Nomologically validity नहीं आती क्योंकि यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रक्ट का दूसरे से रिलेशन आप पता नहीं लग पा रहा। अगर क्रॉस रोडिंग है आपको ये पता लग जाए प्रॉब्लम है, व्हाट टू डू विद दैट स्टेटमेंट, आइदर डाटा क्लीनिंग और गो फॉर सिंपली रिमूविंग दैट स्टेटमेंट। क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि जैसे मैं इसमें कंसीडर कर लेता हूँ, हम तो ये सिखाया गया है कि जो हायर हो या 0.66 है या 0.67 है आप इसमें ले लो, बहुत बढ़िया ले लो। EFA में तो ठीक है ये बातें, CFA में ये आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैलिड आएगी कि इट हैज टू बी टोटली क्लीन डाटा, ये एक होना चाहिए, ये एक होना चाहिए, तीसरा अलग ऐसा होना चाहिए। अगर आपकी क्रॉस रोडिंग है EFA में तो आप चल जाएगा, आप जो अपने एल्गोरिथम लगाते हो जो हायर है ले लो ऐसे, CFA में नहीं चलेगा क्योंकि डाटा में प्रॉब्लम है, वैलिडिटी नहीं है, वहाँ आपको रिमूव करना पड़ेगा, या डाटा क्लीनिंग करें या रिमूव करें। विल कम टू दैट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी EFA CFA दोनों में यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट सिर्फ CFA में यूज करते हैं। सॉरी नहीं करते, करना चाहिए अगर आपके रिजल्ट्स ठीक है। ऐसा भी होता है कि क्योंकि लोगों को ऐसा नहीं पता नहीं होता, वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो दिखाते नहीं। अगर आपके अच्छे रिजल्ट्स हैं आपको दिखाना चाहिए, आपको बताना चाहिए। Ability for discrimination between the two constructs. Every statement must be able to discriminate. वो सिर्फ एक जगह ही होनी चाहिए, क्रॉस रोडिंग नहीं होनी चाहिए। Ability of statement to discriminate between the two constructs. एक के साथ ही हो। And what is nomologically validity? Nomologically validity is the common sense. Nomologically validity is the common sense. मैंने सर्विकल लगाया, सर्विकल पे मेरा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अच्छा आ रहा है, डिस्क्रिमिनेट भी काफी अच्छा आ रहा है, लेकिन जो वहाँ पर एक टेंजिबिलिटी है, टेंजिबिलिटी के अंदर एक लिखा हुआ है द एम्प्लॉय बिहेवियर इज वेरी गुड। एम्प्लॉय बिहेवियर इज वेरी गुड, दिस नेवर कम्स अंडर द टेंजिबिलिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एश्योरेंस और समथिंग एल्स, राइट? इसको हम बोलेंगे बेशक ऊपर से सही है, बिकॉज अल्टीमेटली वो तो सॉफ्टवेयर है, उसको तो पता नहीं, वो तो सिर्फ 1 to 1 पे काम कर रहा है, कुछ भी डाटा सेट हो सकता है। एनीथिंग व्हिच अपील्स अगेंस्ट कॉमन सेंस वी विल से इट इज नोमोलॉजिकल इनवैलिड। ये बात सारी सही है पर ये बात सिरे नहीं चढ़ रही, मुझे लग नहीं रही कि ये कैसे याद करोगे। कंटेंट वैलिडिटी सिंपली सेज टेक आउट ऑल द थिंग्स। ये किसने कहा कि कौन से कंस्ट्रक्ट है, किसमें कौन सी स्टेटमेंट, ये तो बात ही नहीं की। आपने तो कहा क्या आपने सब कुछ ले लिया, आपने कहा हाँ जी सारा ले लिया, दैट इज कंटेंट वैलिडिटी। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या वो सिस्टमेटिकली लगा दिया हर एक के अंदर, तो वो जो चीज है वो हमारा नॉमोलॉजिकली वैलिडिटी। नॉमोलॉजिकली वैलिडिटी इज देयर, ये तो नॉमोलॉजिकली वैलिडिटी हैपेंस और इनवैलिड हैपेंस ओनली इन द EFA। नॉमोलॉजिकली वैलिडिटी हैपेंस ओनली इन द EFA। CFA में कैसे होगी? CFA में तो आपको पता है, CFA में तो होगी ही नहीं, ये सिर्फ EFA में होगी। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू रिमूव समथिंग। आपको लग रहा है कि देखो ये जंप कर गया, मैं क्या करूं, फैक्टर ऑर्डिंग तो हाई है, मैं बाहर भी नहीं कर सकती इसको। नो, यू गॉट लास्ट थिंग नॉमोलॉजिकली इनवैलिड। कॉमन सेंस को अपील नहीं कर रहा ना, बाहर कर दीजिए। एब्सोल्युटली मेंशन करें, और शायद मैंने आपको एक पेपर दिया हो इसमें कॉमन सेंस appeal to common sense. Sir, what the statements are not appealing. Statement should, common sense says it is related with that construct. सर हमें लगता है तो हमारे नहीं हो सकता। मुझे ऐसे कैसे लगेगा जो रेस्पोंडेंट को लगेगा? मैं बात कर रहा हूँ ट्रस्ट की। ट्रस्ट में 4 स्टेटमेंट है और एक आखिरी स्टेटमेंट है प्राइस शुड बी वेरी गुड। अभी आप कुछ एक और उनको रिस्पोंडेंट कुछ भी जवाब क्रॉस रोडिंग की आप बात कर रहे हो। हाँ, उसको कैसे? क्रॉस रोडिंग इज जब आपका एक दो जगह पे जाए। आगे हमारे ये तो
अगर EFA की बात है तो जिसमें ज़्यादा है उसको ले लें। 667 ले लें। या यहाँ पर देखिए EFA से ज़्यादा सब्जेक्टिव टेक्निक कोई नहीं, इतनी सब्जेक्टिविटी है। एट टाइम्स यू वॉलेट द रूल्स, एक में 0.66 है, एक में 0.7 है। आप ये कहोगे 0.7 वाले में नॉमोलॉजिकली वैलिडिटी नहीं है, 66 में है तो उसको दे दो, क्योंकि अल्टीमेटली रूल तो 0.4 से ज़्यादा लेना है ना। अगर 3 जगह 0.4 से ज़्यादा है, आप बोलो मुझे तो यहाँ ज़्यादा अपील करता है, वहाँ ले लीजिए। नॉमोलॉजिकली वैलिड करके आप उसको स्कोर दे दीजिए। अभी आ जाए लिमिट 1%। Nomologically validity is not applicable in CFA and is not applicable in SCMA, क्योंकि CFA पे जब हम करेंगे हमें पहले से ही पता है, वहाँ गलत स्केल पे हम काम ही क्यों करेंगे, स्टैंडर्डाइज पे करेंगे ना, वहाँ नॉमोलॉजिकली वैलिड नहीं हो सकता। कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट और कंटेंट। इसीलिए मैंने कहा नॉमोलॉजिकली वैलिडिटी सिर्फ EFA के अंदर आती है, जब आपको नहीं पता